Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. This is our lecture series for IPSA for mains examination, and this will also be helpful in other agriculture related exams. I am your mentor Mohit Gupta. I have completed my undergraduation from College of Agriculture Pune, and I secured All India Rank 26 in ICAR PG examination. And currently I am pursuing my masters at IRI Karnal Hub IIWBR in soil science discipline. So in the last lecture, we studied the topic pedology, and in today's lecture, we are going to cover the topic problematic soils. So let's start the topic. Problematic soils. As the name suggests, the soils which we are going to talk about are having some problems. Okay, यानी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम इन सॉइल्स में होगी जो प्रोडक्शन में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, ऐसी सॉइल्स होती हैं आपकी सलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल, सलाइन अल्कली सॉइल और एसिड सल्फेट सॉइल्स. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सलाइन सॉइल्स की, तो सलाइन सॉइल्स में क्या होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स ज्यादा होने की वजह से सॉइल सॉल्यूशन जो होता है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है. सॉइल सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज करने की वजह से प्लांट्स का वाटर अपटेक प्लांट्स वाटर अपटेक बिकम्स डिफिकल्ट. ठीक है, एंड समटाइम्स due to high concentration of salts, plants roots die because of exosmosis. ठीक है, जब सॉइल सॉल्यूशन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो सॉइल की सॉइल में जो प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है, उनका एग्जॉस्मोसिस हो जाता है और वो रूट्स डाई हो जाती है, मर जाती हैं. ठीक है, यानी ओवरऑल प्लांट मर जाता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखें सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का, तो हाईएस्ट होती है गुजरात प्लेन्स में और हिल्स रीजन्स में, इसके बाद ईस्ट कोस्ट प्लेन्स में, देन हिली रीजन्स ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन्स में. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज सलाइन सॉइल which is also known as white alkali soil, सोलनचक्स, रेह और थुर. ठीक है, दिस सोलनचक इज अ रशियन टर्म. ओके, and why these soils are known as white alkali soils? Why saline soils are known as white alkali soils? Because of high concentration of salts. These salts accumulate on surface of soils in a layer which appears white. That's why saline soil are known as white alkali soils. Okay, then salts present in saline soils are chlorides and sulfates of sodium, calcium and magnesium. Okay, pH of saline soil is less than 8.5. Okay, EC is electrical conductivity. It is measured in terms of soluble salts. If soluble salts are more, then EC will be more. ठीक है, और सलाइन सॉल्ट्स में तो भर भर के सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, इसलिए उसका ईसी ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स. ठीक है, देन ईएसपी इज लेस देन 15. देन एसएआर इज लेस देन 13. and physical condition of these soils are these soil remain flocculated. Okay, then alkali soil are also known as sodic soils और solents और ऊसर soils और कलार soils. ठीक है, these alkali soils are also known as
black alkali soils. Why? Why alkali soils are known as also known as black alkali soils? Because of high pH and dominance of sodium salt, some part of soluble organic matter dissolves and comes into soil solution and it is deposited as a layer or thin film on the surface which appears black in color. That's why alkali soils are also known as black alkali soils. Okay. This solent is also a Russian term like Solanchak. Okay. And the salts present in alkali soils are carbonates and bicarbonates of sodium. Okay. pH of alkali soils is greater than 8.5. EC is less than 4 decisimon meter inverse. ESP is greater than 15. SAR is greater than 13. And the physical condition is these soils remain dispersed. ठीक है. Then saline alkali soils और saline sodic soils. ठीक है. इसमें saline soil का नाम भी आ रहा है और alkali soils का भी नाम भी आ रहा है. इसका मतलब saline alkali soils में दोनों की प्रॉपर्टी होगी, saline soil की भी और alkali soil की भी. ओके. सो सॉल्ट्स प्रेजेंट आर बोथ क्लोराइड सल्फेट्स ऑफ सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम भी इसमें होगा और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम भी इस सलाइन अल्कली सॉइल में प्रेजेंट होगा. ठीक है. पीएच की अगर बात करें तो पीएच 8.5 से कम होती है यदि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ सोडियम ज्यादा है. ठीक है. क्लोराइड और सल्फेट्स ऑफ सोडियम, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ सोडियम एक इसकी प्रॉपर्टी है सलाइन सॉइल की. यानी क्लोराइड सल्फेट ज्यादा है सोडियम के, यानी ये सलाइन सॉइल की तरह बिहेव कर रही है. इसका मतलब इसका पीएच लेस देन 8.5 होगा यदि क्लोराइड और सल्फेट ज्यादा है तो. ठीक है. ग्रेटर देन 8.5 होगा यदि कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम हाई है. कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम किस में मिलते हैं? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम मिलते हैं आपके अल्कली सॉइल में. यानी कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम हाई होना मतलब इट विल बिहेव एज अल्कली सॉइल और अल्कली सॉइल की पीएच होती है 8.5 से ज्यादा. इसलिए अगर कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम ज्यादा है तो इसकी पीएच 8.5 से ज्यादा होगी. ठीक है. अगर इसकी बात करें ईसी की तो ईसी ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स होता है. ईएसपी ग्रेटर देन 15 होता है. एसएआर ग्रेटर देन 13 होता है एंड दीज सॉइल्स आल्सो रिमेन फ्लोकुलेटेड इन नेचर or their physical condition is flocculated. Okay. And one more soil is there which is degraded alkali. Degraded alkali soils किसे बोलते हैं? When excessive या extensive leaching occurs in occurs in saline sodic soil occurs in saline sodic soils in absence of source of calcium and magnesium, then part of exchangeable sodium is replaced by. तो डिग्रेडेड अल्कली सॉइल्स किसे बोलते हैं? जब एक्सटेंसिव लीचिंग होती है सलाइन सोडिक सॉइल्स में इन द एब्सेंस ऑफ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, then the part of exchangeable sodium is replaced by hydrogen, then such soils are known as degraded alkali soils. Okay. रिक्लेमेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स. ठीक है. रिक्लेमेशन के लिए क्या करेंगे? फ्लडिंग एंड लीचिंग.
ठीक है, जब सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है सॉइल में, जब सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं हम फील्ड में ओपन फ्लडिंग कर देते हैं। ठीक है, ओपन फ्लडिंग मतलब ओपन इरिगेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में मिक्स होके रूट जोन के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, एक्सेसिव जो सॉल्ट्स होते हैं वो लीचिंग करने से या फ्लडिंग करने के कारण, एक्सेसिव फ्लडिंग करने के कारण जो है उन सॉल्ट्स की लीचिंग हो जाती है, एंड ऐसे ये जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है सॉइल में वो कम हो जाता है। ठीक है, तो लीचिंग में हमें क्या करना है, लीच डाउन करना है सॉल्ट्स को फ्रॉम द रूट जोन, बिलो द रूट जोन। ओके, देन एक टर्म आती है लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग रिक्वायरमेंट LR। ठीक है, तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ वाटर that must be leached fraction of water that must be leached through the root zone to the root zone to control the salinity at a specified level. ओके, लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला भी होता है EC ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइडेड बाय EC ऑफ ड्रेनेज वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है, शुड रिमेंबर दिस। ओके, देन इसके बाद आती है डीप प्लॉइंग। ठीक है, डीप प्लॉइंग में क्या होता है, हमें जो इम्परमिएबल लेयर है सॉइल की, जो हार्ड पैन बन गए हैं, उसको क्या करना है, डीप प्लॉ करना है। डीप प्लॉ करने से क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, सॉल्ट्स का डाउनवर्ड मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर टू द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल। उसके लिए क्या करेंगे, डीप प्लॉइंग, हार्ड पैन को ब्रेक करना है सिंपली। ठीक है, देन सबसॉइलिंग, सबसॉइलिंग में भी आपको सेम करना रहेगा। देन इसके बाद है सैंडिंग या मार्लिंग। सैंडिंग या मार्लिंग किसे कहते हैं, इसमें क्या करना होता है, आपको सैंड को मिक्स करना रहेगा सॉइल में, जिससे जिससे क्या होगा, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में इसको मिलाने से क्या होगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, परमियल परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ एयर वाटर रिलेशनशिप, एयर वाटर रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगी सॉइल की। ठीक है, क्या करने से, सैंडिंग या मार्लिंग करने से, मींस सैंड मिलानी है आपको सॉइल में। ठीक है, प्रोफाइल इन्वर्जन, प्रोफाइल इन्वर्जन आप कब करते हैं, जब आपकी ऊपर की लेयर, सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है वो ठीक होती है, और उसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो सॉल्ट अफेक्टेड रहती है। ठीक है, सॉल्ट अफेक्टेड रहती है, या बोलें सलाइन होती है, या फिर सोडिक होती है, या सलाइन सोडिक होती है, तब हमें क्या करना होता है, प्रोफाइल इन्वर्जन। ठीक है, स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग इज सिंपली जस्ट रिमूवल ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ लेयर ऑफ सॉइल, या बोले अपर लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की अपर लेयर के कुछ सेंटीमीटर को रिमूव कर देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, सॉल्ट जो है उस लेयर के साथ रिमूव हो जाएंगे और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। फ्लशिंग, फ्लशिंग तो सिमिलर ही है फ्लडिंग के। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स को कम करने के लिए क्या करेंगे, इरिगेशन कर देंगे, जिससे सॉल्युबल होके सॉल्ट्स जो है उनकी लीचिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें केमिकल एमेलियोरेशन की, तो केमिकल एमेलियोरेशन में हमें क्या करना रहता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस फ्रॉम द
सॉइल एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे केमिकल कौन कौन से यूज ले सकते हैं हम। पहला है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। ठीक है, लाइक अगर हम रिएक्शन देखें तो जिप्सम की रिएक्शन कैसे होगी, CaSO4 प्लस 2NaX, मतलब ये सोडियम का कोई कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये सोडियम तो चला जाएगा इधर और ये कैल्शियम आ जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा CaX प्लस Na2SO4। ये Na2SO4 जो होता है वो लीचेबल होता है। ठीक है, ऐसे हम इस कैल्शियम का यूज करके, यानी कैल्शियम कंपाउंड यानी जिप्सम का यूज कर सकते हैं सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल के अमेलियोरेशन में या रिक्लेमेशन में। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म होती है GR, दैट इज जिप्सम रिक्वायरमेंट। तो GR क्या होता है, जिप्सम रिक्वायरमेंट। जिप्सम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम रिक्वायरमेंट इज ESP इनिशियल माइनस ESP फाइनल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, दिस जिप्सम रिक्वायरमेंट टर्म इज गिवन बाय शूनुगर। शूनुगर। ठीक है, तो ये जिप्सम रिक्वायरमेंट हो गया। इसके अलावा आयरन पायराइट, इसके अलावा है आयरन पायराइट। ठीक है, आयरन पायराइट की रिएक्शन अगर हम देखें तो FeS2 प्लस 3.5H2O gives FeO4 प्लस H2SO4। ठीक है, देन FeSO4 प्लस 2H2O gives H2SO4 प्लस FeOH का होल ट्वाइस, देन H2SO4 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट gives कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। ओके, देन CaSO4 की रिएक्शन अब किससे होगी, सोडियम कंपाउंड से। ठीक है, ये Na प्लस है, ये Na प्लस है, यानी दो चार्ज थे प्लस के, है ना, +2 चार्ज था। अब कैल्शियम पे भी +2 होता है, तो ये इन दो सोडियम की जगह ले लेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्ले, कैल्शियम प्लस कैल्शियम क्ले क्ले प्लस Na2SO4। और ये Na2SO4 तो आपको बोला ही हमने कि क्या होता है, ये लीचेबल होता है। ठीक है, तो ऐसे रिक्लेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन पायराइट FeS2। ठीक है, आयरन सल्फेट की अगर बात करें तो आयरन सल्फेट की रिएक्शन होती है FeSO4 प्लस H2O gives H2SO4 प्लस FeO, then in the calcareous soil, in calcareous soil H2SO4 will react with calcium carbonate because this is calcareous soil। ठीक है, तो कैल्शियम विल बी देयर, बनेगा क्या, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, then this calcium sulfate CaSO4 will react with वही sodium clay, similarly as we saw in iron pyrite, same reaction, calcium clay plus Na2SO4, that is leachable। ठीक है, then in non calcareous soils
the H2SO4 नॉन कैलकेरियस है तो कोई कैल्शियम कंपाउंड तो है नहीं, ये डायरेक्ट सोडियम क्ले से रिएक्ट कर जाएगा H2SO4। ठीक है, और क्या बनेगा, ये Na प्लस था, ये Na प्लस था, यानी दो प्लस प्लस थे। ठीक है, तो दो प्लस अब भी चाहिए, तो ये H प्लस, ये एक और H प्लस। ठीक है, और जो साथ में बना है वो Na2SO4 लीचेबल। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक प्लस यानी दो प्लस चाहिए थे, तो ये कैल्शियम अकेला आ गया था क्योंकि ये +2 होता है। ऐसे ही यहाँ पे सोडियम प्लस दो प्लस थे, तो यहाँ पे दो H प्लस आ गए। ठीक है, ओके। देन बायोलॉजिकल एमोलिएशन में क्या होगा, ग्रीन मैन्योरिंग हम कर सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यूज का यूज कर सकते हैं, FYM का यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव द सॉइल। ठीक है, अभी हम देखते हैं सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स। हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स में कौन कौन आती है, शुगर बीट, बार्ले और कॉटन। यू कैन रिमेंबर BSC, बार्ले, शुगर बीट एंड कॉटन। ठीक है, ये कॉटन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप में कॉटन पूछा गया था। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप में कौन कौन आएगा, व्हीट, राइस, मेज। ओके, एंड लो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप में कौन आएगा, मूंग बीन्स एंड रेडिश। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। हाईली सॉल्ट रेजिस्टेंट फ्रूट क्रॉप पूछे तो हाईली सॉल्ट रेजिस्टेंट फ्रूट क्रॉप इज डेट पाम। ओके, एंड सॉल्ट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म इन बार्ले इज एक्सक्लूजन। ठीक है, सॉल्ट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म इन शुगर बीट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, sodicity in soil is measured by ESP and in soil solution by SAR. So you can remember the difference between ESP and SAR. The sodicity is measured in the soil with the help of ESP. ठीक है, and the sodicity in soil solution is measured with the help of SAR. Okay. देन क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के लिए कुछ इवेल्युएटिंग क्राइटेरियाज हैं। पहला है सैलिनिटी हैजर्ड, दूसरा है सोडियम हैजर्ड, तीसरा है रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट इंडेक्स, बोरॉन कंसंट्रेशन, क्लोराइड कंसंट्रेशन, सॉल्युबल सोडियम परसेंटेज और मैग्नीशियम हैजर्ड। ठीक है, इन सब को मेजर करके हम क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका इरिगेशन वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ हम क्लासेस इनमें डिवाइड करेंगे कि इतने से इतने रेंज के बीच में अगर आपका सॉइल सैलिनिटी है, मतलब सॉरी वाटर सैलिनिटी है, तो वो सुटेबल है इरिगेशन के लिए, अदरवाइज वो सुटेबल नहीं है इरिगेशन के लिए। ठीक है, सो देखते हैं इसको। सैलिनिटी हैजर्ड अकॉर्डिंग टू USSL, यूनाइटेड स्टेट सैलिनिटी लेबोरेटरी, यूनाइटेड स्टेट सैलिनिटी लेबोरेटरी ने 4 सैलिनिटी क्लासेस बनाई हैं बेस्ड ऑन EC। ठीक है, EC की यूनिट क्या है, डेसीसाइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, so class 1, class 2, class 3 and class 4, 4 classes are there based on salinity. 0 to 25 class 1, 0 to 25 to 75 class 2, 75 to 2 to 5 class 3 and 2 to 5 to 500 decimal meter inverse EC, then it is in under class 4th। ठीक है, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड आर सुटेबल फॉर इरिगेशन, यानी if the EC lies between 0 to 75, then the water is suitable for irrigation, and if the EC is greater than 75, whether it is between 75 to 2 to 5 or in between 2 to 5 to 500, that water is not suitable for irrigation. So simply we can say that if EC is less than 75 decimal meter inverse, then water is suitable for irrigation, and if EC is greater than 75 decimal meter inverse, then that water is not suitable for irrigation. Okay, then sodium hazard is expressed through SAR। ठीक है,
4 sodicity classes are there. First is S1, sodicity class 1. If SAR ranges between 0 to 10, then it is under S1 class. Then if SAR is 10 to 18, between 10 to 18, then sodicity class 2. 18 टू 26 के बीच में SAR है तो S3 में आएगा, और ग्रेटर देन 26 है आपका SAR तो S4 क्लास में आएगा। ठीक है, S1 क्लास जो है वो नेग्लिजिबल हैजार्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर S2 क्लास में है आपका वाटर, यानी 10 टू 18 के बीच में SAR आ रहा है तो मीडियम हैजार्ड है। 18 टू 26 में आ रहा है आपका SAR वाटर का तो हाईली हैजार्डस है, और ग्रेटर देन 26 है तो वेरी हाई हैजार्ड। ओके, that's it about sodium hazard. Then RSC, residual sodium carbonate. Effects of carbonates and bicarbonates is evaluated through RSC. ठीक है, RSC रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट किस किस को मेजर करता है? इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट को और बाइकार्बोनेट को। ठीक है, RSC का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इट इज द सम ऑफ कार्बोनेट्स प्लस बाइकार्बोनेट माइनस सम ऑफ कैल्शियम आयंस प्लस मैग्नीशियम आयंस। ओके, and here the concentration of cation and anion is in milli equivalent liter inverse. ठीक है, formula of residual sodium carbonate is carbonate plus bicarbonate minus calcium plus magnesium. ठीक है, then RSC is if less than 1.25, then water can be used safely. If RSC lies between 1.25 to 2.5, then the water can be used with certain management. Okay, and if RSC is greater than 2.5, then that water is unsuitable for irrigation purpose. Okay, then acidic soil. Acidic soils are less productive soils. ठीक है, sources of soil acidity are exchangeable hydrogen ion, aluminum ion, iron oxides and aluminum oxides. ठीक है, due to these ions acidity develop in soils. ठीक है, and due to soil organic matter and clay minerals also acidity increases. ठीक है, and pH का फॉर्मूला होता है log of inverse of hydrogen ion concentration, or we can say negative log of H plus ion concentrations. That will give you pH. ठीक है, रेंज हम देख लेते हैं। यदि pH लेस देन 4.5 है तो एक्सट्रीमली एसिडिक है सॉइल। 4.5 से 5 के बीच में है तो वेरी स्ट्रांगली एसिडिक है सॉइल। ठीक है, 5.1 से 5.5 है तो स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल है। 5.6 से 6 है अगर pH तो मॉडरेटली एसिडिक सॉइल है। ठीक है, 6.1 से 6.5 है तो स्लाइटली एसिडिक है सॉइल, और 6.6 टू 7.3 के बीच में तो न्यूट्रल बोल देते हैं। वैसे न्यूट्रल होती है 7 या 7 के पास जब होती है pH तो होती है आपकी न्यूट्रल। ठीक है, तो हमने देखा कि 7 से जब थोड़ा सा कम है या 6.6 से 7 के बीच में है या 7.3 के बीच में है तो न्यूट्रल सॉइल है। इससे नीचे जाएंगे 6.1 से 6.5 तो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी सॉइल। 6 से भी नीचे जाएंगे 5.6 से 6 तो मॉडरेटली एसिडिक बोलेंगे। उससे भी नीचे जाएंगे 5.1 से 5.5 तो स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगी सॉइल। ठीक है, उससे भी नीचे 4.5 से 5 के बीच में वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, और लेस देन 4.5 pH पे एक्सट्रीमली एसिडिक सॉइल। ओके, देन रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल इज डन बाय लाइमिंग। ठीक है, लाइम इज जस्ट वी कैन से चूना। लाइम जो होता है वो क्या होता है? चूना। ठीक है, लाइमिंग मटेरियल किसे बोलते हैं? ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड जो है सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड जो है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं तो उस मटेरियल को हम बोलेंगे लाइमिंग मटेरियल। रिएक्शन क्या होती है लाइम की सॉइल में? चाहे आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल लो, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल लो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट डाल लो, अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 का होल ट्वाइस। ओके, लाइम रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ लाइमिंग मटेरियल दैट मस्ट बी एडेड टू रेज द pH टू सम प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे जिप्सम कितना चाहिए होता है उसको बोलते हैं जिप्सम रिक्वायरमेंट। ऐसे लाइम कितना चाहिए?
ठीक है, उसे बोलते हैं लाइम रिक्वायरमेंट। कितना लाइम चाहिए कि पीएच की वैल्यू को एक सर्टेन लिमिट तक रेज किया जा सके, उसे बोलते हैं हम लाइम रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट, acid sulfate soils. These acid sulfate soils are also known as cat clay soils. ठीक है, acid sulfate soils are also known as cat clay soils. Soils with sufficient sulfides, that is FeH2, iron sulfide. ठीक है, these soils become strongly acidic when drained and aerated enough for cultivation. ठीक है, जब ये सॉइल ड्रेन, इनमें आयरन सल्फाइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, एंड जब ये सॉइल ड्रेन होती है तो ये स्ट्रांगली एसिडिक हो जाती है, बिकॉज जो ये आपका पायराइट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से पीएच जो होती है वो कम हो जाती है, लेस देन 4। ओके, और बिलो 4 पीएच जो बैक्टीरिया होता है थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, ये मोस्ट एक्टिव ऑक्सीडाइजर होता है बिलो पीएच 4 और बिल्ड्स अप एक्टिविटी वेरी रैपिडली। ओके, and this is also very important point. Yellow mottled or coatings of jarosite are found under anaerobic conditions. ठीक है, येलो मोटल्स मिलेंगे या कोटिंग्स मिलेंगी किसकी, जेरोसाइट की। ठीक है, dominant mineral in acid sulfate soils that occur in acid sulfate soils only under anaerobic condition। ठीक है, तो एसिड सल्फेट सॉइल्स का डोमिनेंट मिनरल कौन है, जेरोसाइट। ठीक है, एंड इट इज फाउंड ओनली अंडर एनारोबिक कंडीशंस। रिएक्शन देखें तो सल्फर प्लस O2 प्लस 2H2 gives H2SO4. This H2SO4 helps in reducing the pH या leads to reduction in pH, या H2S उसको भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ड्यू टू विच द pH decreases. Now some points to remember. वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन हम देखें सॉइल का, तो सॉइल को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो है आपका सॉलिड स्पेस, दूसरा है आपका पोर स्पेस, और ये एग्जैक्टली हमने बीच में से डिवाइड किया है, यानी 50% तो आपका क्या होगा, सॉलिड स्पेस, और 50% आपका क्या होगा, पोर स्पेस। ठीक है, अब इस सॉलिड स्पेस में अगर हम बात करें तो जो मिनरल मैटर है सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड स्पेस में मिनरल मैटर वो कितना है, 45%, 45%। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, 5% ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सॉलिड स्पेस टोटल वॉल्यूम का 50% सॉलिड है, 50% पोर है। जो 50% सॉलिड स्पेस है उसको भी हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। 45% जो है वो है मिनरल मैटर, या हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और 5% क्या है आपका ऑर्गेनिक मैटर। जो बाकी बचा सॉइल का 50% पार्ट होता है, जो पोर स्पेस होता है, उसको भी हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, 25% एयर एंड 25% वाटर। ठीक है, यू कैन रिमेंबर लाइक 25% 25% हवा पानी, 25% 25% हवा पानी। ओके, here is the similar diagram, 25% air, 25% water. This will constitute the 50% pore space. जो रिमेनिंग 50% आपका सॉलिड स्पेस है, उसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। 5% तो आपका क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, और 45% क्या है आपका इनऑर्गेनिक मैटर, दैट इज मिनरल। ओके, देन have a look at some institute related to soil. First one is CSSRI, that is Central Soil Salinity Research Institute, which is located in Karnal, Haryana, established in 1969. Okay, then IISS, Indian Institute of Soil Science, located in Bhopal, Madhya Pradesh,
established in 1988. Then NBSSLUP, National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1976. ठीक है. देन CSWCRTI, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute. It is located in Dehradun, Uttarakhand and established in the year 1974. ठीक है. Then आपका है concept of zonality. This concept of zonality was given by Dokuchev, and Dokuchev was the father of soil science. ठीक है. Dokuchev was the father of soil science. B.V. Dokuchev, Vasily Vasilevich Dokuchev, he first time gave the classification of the soil. Okay, he divided soil into 3 parts. Okay, here it will not be visible. हम यहाँ पे लिखते हैं इसको. The next point is concept of zonality. Concept of zonality was given by Dokuchev. Dokuchev, father of soil science, as we have talked earlier. Vasily Vasilevich Dokuchev, father of soil science. He gave first classification of soil. What he do? He did then concept of zonality. Concept of zonality was given by Dokuchev. Dokuchev, father of soil science, as we have talked earlier. Vasily Vasilevich Dokuchev, father of soil science. He gave first classification of soil. What he did? He classified soil into 3 classes: normal, abnormal, and transitional, which are now known as zonal soils. Abnormal are azonal soils, and transitional as intrazonal soils. ठीक है. ये जोनल सॉइल्स के एग्जांपल है लाइक आपकी लेटराइट सॉइल, फ्लैट सॉइल. एजोनल सॉइल में आपकी आती है एलुवियल सॉइल, देन रेगोसॉल, देन लिथोसॉल. ओके. इंट्राजोनल सॉइल्स में आपकी आती है हेलोमॉर्फिक सॉइल्स, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स, एंड कैल्सीमॉर्फिक सॉइल्स. ठीक है. नॉर्मल, एबनॉर्मल, ट्रांजिशनल, which are today known as zonal soils, azonal soils and intrazonal soils. ठीक है. देन ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है और इसका फॉर्मूला होता है एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइडेड बाय CEC मल्टीप्लाई बाय. ओके. तो ये हो गया आपका ESP. इसके बाद होता है आपका SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है आपका सोडियम की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट कैल्शियम की कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन divided by 2. This is the formula of sodium adsorption ratio, that is SAR. Okay. Then the entire soil profile is divided into 3 zones: the upper soil water zone or root zone. Second one is Vadose zone, which is unsaturated. Third one is capillary fringe zone, which is saturated zone. ठीक है. These are the 3 zones in which the whole soil profile is divided. ठीक है. And the question is asked, recharging of groundwater depends on which zone? Answer will be Vadose zone. Okay. Then H2S often found in lowland rice soil. ठीक है. Causing Akiochi disease. Which disease? Akiochi disease, which prevents rice roots from absorbing nutrients. ठीक है. H2S जो होता है वो lowland rice में बनता है, जिसकी वजह से Akiochi disease होती है, जिसमें
राइस प्लांट की रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। If you are having any doubt related to the topic which we covered today, you can simply put your doubt in the comment section. I will look into it and I will try to reply each and every doubt. So, thank you very much. And you can also join our mock test bundle, which comprises of 50 plus full length mock test, which are topic wise. So you can join that, and in that content you will also get the this PPT also. So you can join. So this is for today, and in the next lecture we will start the topic soil physics. Okay, we will talk about soil physics in next classes. So thank you very much for watching the video.